بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ میرا نام محمد رمضان ہے اور آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہوگا نومنکلیچر آف الکینز۔ تو پہلے تھوڑا سا جو ہے وہ انٹروڈکشن پڑھ لیتے ہیں کہ ہوتے کیا ہے الکین۔ دا کمپاؤنڈ آف کاربن اینڈ ہائیڈروجن ان وچ دا ویلنسی آف کاربن آر فلی سیٹسفائڈ بائی سنگل بانڈ۔ ایسے کمپاؤنڈ جس میں کاربن کی جو ویلنسی ہوتی ہے وہ فلی سیٹسفائڈ ہوتی ہے سنگل بانڈ سے۔ اب اس سے پہلے میں نے انٹروڈکشن ٹو ہائیڈرو کاربن جو ہے وہ ایک ٹاپک جو ہے وہ اپلوڈ کیا ہوا ہے، اس سے پہلے والا لیکچر ہے۔ اگر آپ نے وہ لیکچر اگر آپ دیکھ لیں گے تو مزید آپ کو انٹروڈکشن کا جو ہے وہ پتہ چل جائے گا۔ تو اب لیکچر کو مزید سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ اب نومنکلیچر آف الکینز، نومنکلیچر الکینز کے ہم پڑھنے لگے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کتنے میتھڈ سے ہم نام دے سکتے ہیں۔ تو الکینز کو نیمنگ کرنے کے دو جو ہیں وہ موسٹ کامن میتھڈ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کامن اور ٹریویل نیم، دوسرا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آیوپیک سسٹم ہوتا ہے۔ کامن اور ٹریویل نیم جو ہے یہ کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہوتا ہے کہ دس سسٹم واز بیسڈ آن ہسٹری، میتھڈ آف پریپریشن اینڈ نیم آف پرسن ہو واز ورکنگ آن اٹ، جو اس پہ کام کر رہا ہوتا تھا۔ مطلب یہ سمپلی ڈیپینڈ کرتا ہوتا تھا کہ ہم نے جو ہے وہ اس کی ہسٹری دیکھنی، کوئی بھی کمپاؤنڈ ہے نا ہمارے پاس، ہم نے اس کا نام رکھنا ہے۔ ہم کیا کرتے تھے، ہم اس کی ہسٹری دیکھتے تھے یا اس کا میتھڈ آف پریپریشن دیکھتے تھے یا اس بندے کا نام دیکھتے تھے کہ کون اس کو جو ہے وہ پریزنٹ کر رہا ہے، کون اس کی اسٹڈی کر رہا ہے، تو ہم اسی کے حساب سے جو ہے وہ پھر نیم رکھ دیتے ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب جیسا کہ اب میتھین کو لگا لیں کہ یہ مارش گیس کہلاتی تھی، ٹھیک ہے، میتھین جو تھی یہ مارش گیس کہلاتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مارشی یعنی کہ دلدلی علاقوں میں یہ ہمیں ملتی ہوتی تھی، اس وقت دلدلی علاقوں میں ملتی تھی، تو اس لیے ہم نے اس دلدل کو کہتے ہوتے ہیں مارش، تو وہاں سے بن گیا یہ مارش گیس، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ایک اور کامن نیم ہے کہ اگر یہ اس طرح کاربن ایٹم گن لیتے تھے 1 2 3 4 اور 5، اس کو کہہ دیتے تھے یہ این پینٹین ہے۔ اگر ساتھ ایک برانچ لگی ہے تو کہتے تھے یہ آئسو پینٹین ہے، اگر دو برانچیں لگی تھی تو کہتے تھے یہ نیو پینٹین ہے۔ مطلب یہ کسی قسم کا کوئی بھی انٹرنیشنل رول نہیں تھا، یہ لمیٹڈ تھا، یہ ورکنگ پہ ڈیپینڈ کرتا تھا، یہ میتھڈ آف پریپریشن پہ ڈیپینڈ کرتا تھا، یا ہسٹری پہ ڈیپینڈ کرتا تھا، یا کسی نام پہ ڈیپینڈ کرتا تھا، یا کسی بندے نے جو نام رکھ دیا، جو کمپاؤنڈ بناتا تھا وہ اپنی مرضی سے اس کا نام بھی رکھ دیا کرتا تھا۔ تو یہ کچھ جو ہے یہ کامن نیم تھا۔ لیکن اس کے بعد جب یہ کنفیوژن ہوئی کہ ہم یہ اس جیسے جیسے نالج میں اضافہ ہوتا گیا، آرگینک کمپاؤنڈ ہزاروں سے لاکھوں سے اب کروڑوں میں جا رہے ہیں، تو یہ مشکل ہو گیا تھا کہ ہم اتنے سارے بندوں کا اوریجن، ہسٹری اور یہ سب کچھ یاد رکھیں۔ تو اس لیے پھر ہم نے کیا کیا، سائنٹسٹ نے جو ہے وہ 1957 میں انٹرنیشنل یونین آف پیور اینڈ اپلائیڈ کیمسٹری کی ایک میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں انہوں نے جو ہے وہ سسٹمیٹک نیم دینے کے لیے جو ہے وہ میٹنگ کی کہ ہم جو ہے وہ آرگینک کمپاؤنڈ کو ایک سسٹمیٹک نیم دیتے ہیں جو کہ اس کے سٹرکچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہوگا کہ وہ کس طرح کا مالیکیول ہے۔ تو اس سسٹم کو جو ہے وہ پھر کہا گیا آیوپیک سسٹم۔ اب یہ جو پوری دنیا میں یہی چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آئی سے مراد انٹر ہوتا ہے، انٹرنیشنل ہوتا ہے، یو سے مراد یونین، پی سے مراد پیور، اور اے سے مراد اپلائیڈ، اور سی سے مراد کیمسٹری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کچھ رولز ہیں جب ہم نے نومنکلیچر کرنی ہوتی ہے الکینز کی، تو اس کے کچھ رولز ہوتے ہیں جن رولز کو ہم نے فالو کر کے نومنکلیچر الکین کی کرنی۔ سب سے پہلا رول کیا ہے کہ سلیکٹ دا لانگیسٹ چین اینڈ نیم اٹ ایز اے پیرنٹ چین۔ آپ کے پاس یہ کوئی بھی آرگینک کمپاؤنڈ ہے، آپ نے چین کاؤنٹ کرنی۔ چین کیسے کاؤنٹ کرنی؟ آپ نے نا ایک طرف سے کاؤنٹنگ کر لینی، وہ آپ کی مرضی جہاں سے مرضی کرے۔ سب سے پہلے دیکھیں 1 2 3 4 5 اور 6، ایک یہ چین بن رہی ہے ہمارے پاس 1 2 3 4 5 اینڈ 6، ایک یہ چین بن رہی ہے 1 2 اینڈ 3، ایک یہ اس طرح کی چین بن رہی ہے۔ ہمارے پاس اس کمپاؤنڈ میں 3 چینز بن رہی ہیں، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ والی تو 3 ایٹم جو ہے وہ اس میں کاربن آتے ہیں، تو ہم نے یہ پہلے سے ہی نظر انداز کر دی کہ یہ ہم نے سلیکٹ نہیں کرنی۔ اب بچی 2 چینز، ایک یہ 1 2 3 4 5 اینڈ 6 یہ والی، اور ایک یہ سٹریٹ والی۔ اب یہاں پہ آپ نے ایک چیز ذہن میں نشین کر لینی ہے کہ اگر ایک طرف جاتے ہوئے یعنی کہ یہ برانچ کی طرف جاتے ہوئے بھی اتنے کاربن ایٹم ہوں، اور اگر ہم سٹریٹ جا رہے ہوں تو اس وقت بھی اتنے کاربن ایٹم ہوں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سٹریٹ والی کو پریفر کر لینا اور اس کو آپ نے کہہ دینا کہ اٹ از آور پیرنٹ چین، یہ ہماری پیرنٹ چین ہے۔ دوسری ایگزامپل دیکھیں کہ یہاں پہ 1 2 3 4 5 اینڈ 6 یہ بن رہا ہے، دوسرا 1 2 3
4 5 6 एंड 7। यहाँ पे ये चेन लंबी बन रही है साइड वाली, ठीक है। तो हमने इस वक्त क्या किया, हमने पहला हमारा काम ये है कि हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट जो है वो करनी होती है। तो हमने पहले जो है ये लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली। इस बार जो है ये थोड़ी ये ब्रांच वाली इस तरफ को मुड़ी हुई है, स्ट्रेट नहीं है बल्कि इस तरफ को है ये, ठीक है। तो हमने चेन ऐसी सिलेक्ट की जो कि ऑलरेडी एक ब्रांच की शक्ल में है, ठीक है। दूसरा रूल क्या है, नंबर कार्बन एटम्स इन सच दैट सब्स्टिट्यूएंट गेट स्मॉलेस्ट नंबर। अब जो चेन हमने पेरेंट चेन सिलेक्ट की हुई है ना, उसके अलावा जो साइडों पे जैसा कि यहाँ पे CH3 लगा है और यहाँ पर CH3 लगा है, इनको हमने सब्स्टिट्यूएंट्स कहना है। क्या कहना है हमने इनको, सब्स्टिट्यूएंट, या आसान लफ्जों में आप इसको कह सकते हैं कि हमने इनको ब्रांच कहना है, ठीक है। तो ये एक तरफ से एक ब्रांच लगी हुई है जिसको हमने क्या कहना है, सब्स्टिट्यूएंट भी कह सकते हैं। तो अब आपने नंबर स्टार्ट करना है, कार्बनों को नंबर देना है, काउंट करने हैं, कार्बन एटम्स की पहचान करनी। तो आपने नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है जहां पर ये सब्स्टिट्यूएंट सबसे करीब आ रहा हो। जैसे 1 2 ये दूसरे नंबर पर ही जो है ये कार्बन एटम यहाँ पे आ रहा है, तो हमने यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर दी। इस केस में देखें कि अगर हम नंबरिंग यहां से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5, तो 5वें नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। लेकिन जब हमने नंबरिंग यहां से स्टार्ट की 1 2 3, तो अब हम देख रहे हैं तीसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। तो हमने कोशिश यही करनी है कि जहां पर सब्स्टिट्यूएंट को, जिस कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है उस कार्बन को हमने लोएस्ट नंबर देना है। तो हमने फिर इस वजह से नंबरिंग यहां से स्टार्ट करनी है। तो इंडिकेट सब्स्टिट्यूएंट बाय नंबर, इंडिकेट करना है आपने सब्स्टिट्यूएंट को नंबर देके ऑफ कार्बन एटम टू विच इट इज अटैच, किस कार्बन एटम के साथ ये अटैच है। जैसा कि ये CH3 ग्रुप जो है ये मिथाइल ग्रुप है। इससे पहले वाला दोबारा मैं आपको बता रहा हूं कि इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोकार्बन वाले एक लेक्चर है, उसमें मैंने ये बताया हुआ है कि अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं, जिनमें ये CH3 भी शामिल है, जिसको मिथाइल ग्रुप कहते हैं। ये किस तरह से बनते हैं कि अल्केन से जब आप एक हाइड्रोजन निकाल देते होते हैं तो अल्काइन बनते हैं। इसी तरह से अगर आप मीथेन से एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो मिथाइल बनता है, ठीक है। प्रोपेन से एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो प्रोपाइल बनता है। इसी तरह इथेन से अगर आप एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो इथाइल बनता है। तो अब ये CH3 है, इसका नाम मिथाइल है, तो ये दूसरे कार्बन एटम पे पहले आपने ये 2 लिखना है, फिर आपने ये ग्रुप का नाम लिखना है, कौन सा ग्रुप जो है वो अटैच है, वो है मिथाइल। और बिना स्पेस दिए आगे कितने कार्बन है, 6 कार्बन वाली हेक्सेन होती है। दोबारा सुन ले, 2 नंबर हमने इसको शुरू में इसलिए लगाया क्योंकि दूसरे नंबर पर ये ब्रांच है, और फिर इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है 2 मिथाइल, और फिर हमने कार्बन एटम गिन लेने हैं हेक्सेन। यहां पर भी सेम है कि तीसरे नंबर पे जो है वो कार्बन एटम अटैच है, तो बन गया 3 मिथाइल, और टोटल कार्बन जो हमने पेरेंट चेन सिलेक्ट की है ना, उस पेरेंट चेन में 7 हैं, तो बन गया हेप्टेन। तो इफ 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट, अगर 2 या 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, देन दीज शुड बी नेम्ड इन अल्फाबेट ऑर्डर। इनको फिर आपने अल्फाबेट ऑर्डर को मद्देनजर रखकर जो है इनको नाम देखना है। देखिए ये हमारे पास एक कंपाउंड है, हमने चेन सिलेक्ट कर ली है क्योंकि ये वाली ही लॉन्गेस्ट चेन और स्ट्रेट चेन बन रही है। तो दूसरे नंबर पे CH3 ग्रुप है, ये होता है मिथाइल ग्रुप। और चौथे नंबर पे देखें CH2 और CH3, इस ग्रुप को हमने कहना होता है इथाइल। अगर आप अल्फाबेट में देखें, मिथाइल शुरू होता है M से और इथाइल शुरू होता है E से, तो अल्फाबेट में पहले E आता है। तो चौथे नंबर पे, 4th नंबर पे जो है ये अटैच है, तो हमने करना है 4 इथाइल। नंबरिंग इधर से इसलिए क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़ रहा था, ठीक है। तो बना 4 इथाइल, फिर हमने ये स्लैश लगानी है, स्लैश लगाने के बाद फिर लिखना है 2 मिथाइल, आगे 6 है तो बिना स्पेस दिए हमने लिख देना है हेक्सेन। अब यहां पे मजीद देखें, ये एक और बड़ा मॉलिक्यूल है। पहला हम देखते हैं लॉन्गेस्ट चेन 1 2, ये हमने जो है 8 तक सेलेक्ट की हुई है। इधर को जाए ना तब शॉर्ट बनती है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारे पास 8 कार्बन एटम इस चेन में मिल रहे हैं, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे एक ब्रांच, नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी क्योंकि ब्रांच इधर से करीब है। चौथे नंबर पे एक ब्रांच और 5वें नंबर पे एक ब्रांच। ये वाला मिथाइल है, ये वाला जो है ये इथाइल है, और ये वाला जो है ये प्रोपाइल है, ठीक है। अब अल्फाबेट में चले जाएं, मिथाइल शुरू होता है M से, इथाइल शुरू होता है E से, और प्रोपाइल शुरू होता है P से। तो पहले नंबर पे जो है वो E आता है, तो हमने लिखा 4 इथाइल, फिर आगे /2 मिथाइल /5 प्रोपाइल ऑक्टेन, ठीक है।
क्लियर हो गई है? मतलब 4 चौथे नंबर पे इथाइल है, दूसरे नंबर पे मिथाइल है, पांचवें नंबर पे जो है वो प्रोपाइल है। हमने क्या किया है? लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की है, नंबरिंग स्टार्ट की जहां से ब्रांच करीब आ रही है। नंबरिंग के बाद हमने अल्फाबेट को जहन में रख के फिर जो है वो हमने नेम रखा। अब ये और प्रैक्टिस के लिए आपके सामने एक बड़ा मॉलिक्यूल है, ये स्ट्रेट चेन ऑलरेडी सिलेक्टेड है, हमने सिलेक्ट की है। मैंने आपको जो है वो पूरे पीछे डिटेल बताई हुई है किस तरह हमने सिलेक्ट की। वैसे अब देखिए यहाँ पे दूसरे नंबर पे ब्रांच है, चौथे नंबर पर है, पांचवें नंबर पर भी है, छठे नंबर पर भी है, सातवें पर भी है। ठीक है, अगर हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना 1 2 3, तो तीसरे नंबर पे जो है वो ब्रांच आती थी, लेकिन यहाँ पे दूसरे नंबर पे। तो हमने कोशिश करनी होती कि ब्रांच छोटे से छोटा नंबर हासिल करे। अब हमें ग्रुप की पहचान करनी, ये है मिथाइल, ये है ब्रोमो, ये भी मिथाइल, ये है क्लोरो। ठीक है, ये वाला प्रोपाइल है और ये वाला इथाइल है। अब अल्फाबेट में देखें ना तो ब्रोमो पहले आएगा क्योंकि बी आता है, ए के बाद बी आ गया। तो कितने नंबर पे है? 4th नंबर पे, तो लिखा 4 ब्रोमो। ब्रोमो के बाद बी के बाद आता है सी, 6 क्लोरो। फिर से सी के बाद जो है वो पहले इन में से आ रहा है ई, तो 7 इथाइल। मिथाइल देखिए 2 लगे हुए, एक दूसरे नंबर पे लगा है, एक पांचवें पे लगा है। अब हम ये नहीं करेंगे 2 मिथाइल 5 मिथाइल, बल्कि दोनों नंबर लिखेंगे 2 5। कितने मिथाइल है? एक ये मिथाइल ग्रुप है और एक ये मिथाइल ग्रुप है, तो इसको हमने क्या कह देना है? डाई मिथाइल। और छठे नंबर पे लगा हुआ है प्रोपाइल, नोनेन इस कंपाउंड का नाम, क्योंकि 9 कार्बन एटम वाला है तो इसको हमने क्या कह देना है? नोनेन। तो यूं इसका नाम बना 4 ब्रोमो, 6 क्लोरो, 7 इथाइल, 2 5 डाइमिथाइल, 6 प्रोपाइल नोनेन। हमने क्या किया? हमने नंबरिंग स्टार्ट की, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की, फिर हमने अल्फाबेट को देखा, हमने ब्रांच को जो है वो लोएस्ट नंबर दिया, फिर ब्रांचों को नंबर के साथ इंडिकेट भी किया। तो इफ आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन और डिफरेंट कार्बन एटम, देन प्रीफिक्सेस ड्राई, ट्राई, etc आर यूज्ड। अब देखें हमारे पास यहाँ पे पीछे भी एक एग्जांपल गुजरी है, तो इसको मजीद क्लियर करने के लिए देखें ये CH3 ये भी मिथाइल, CH3 ये भी मिथाइल। अब हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें? अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो तब भी दूसरे नंबर पे ब्रांच है, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो तब भी दूसरे नंबर पे ब्रांच है। तो ये हम पे डिपेंड करता था कि हम कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें। मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दी, तो 1 2 3 4। दूसरे नंबर पर भी जो है वो क्या है? मिथाइल ग्रुप है, और तीसरे नंबर पर भी क्या है? मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो अब हमने इसका नाम लिखना है। तो नाम लिखने के लिए हम ये नहीं करेंगे कि 2 मिथाइल 3 मिथाइल, क्योंकि एक जैसे ग्रुप है तो हमने फिर प्रीफिक्सेस यूज करनी है। सबसे पहले हमने उन कार्बन एटम को इंडिकेट करना है जहां पर ये ब्रांचें लगी हुई हैं, जैसा कि 2 और 3। ठीक है, अब ये चीज जहन नशीन कर ले कि जब आपने इस तरह नंबरिंग लिखी ना, जैसे 2 3, तो इस सेंटर में कॉमा आएगा, लेकिन जब आपने कोई इंग्लिश का वर्ड जैसा कि इधर डाइमिथाइल लिखा है तो यहां पर स्लैश आएगा। तो 2 3 कितने मिथाइल ग्रुप है? 2। तो 2 के लिए हमने प्रीफिक्स यूज करना है डाई, और कौन सा ग्रुप अटैच है? मिथाइल वाला, तो बन गया डाई मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, अब यहां पर देखें तो ये 3 मिथाइल ग्रुप है, तो इसका नाम फिर सारे रूल्स के मुताबिक जो अब हम स्टडी करते हैं तो ये बनता है 2। अब अगेन यहाँ पे भी ये ज़हन नशीन कर ले कि नंबरिंग आप इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो मैंने इधर से स्टार्ट कर ली। तो 2 3 4 कितने हैं मिथाइल ग्रुप? 3 है, तो बन गया ट्राई मिथाइल पेंटेन। अब अगर एक सेम ही कार्बन पर सेम या डिफरेंट आ जाते हैं सब्स्टिट्यूएंट, जहां पर यहां जो एग्जांपल है हम देख रहे हैं CH3 एंड CH3 दोनों जो हैं वो मिथाइल ग्रुप हैं और सेम कार्बन एटम पर अटैच है, तो 3 3 डाई मिथाइल हेक्सेन इसका नाम होगा। अब ये नहीं करना हमने कि 3 डाई मिथाइल, नहीं, जितने ब्रांचेस जितने सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं उतनी बार वो वर्ड लिखना भी है। तो तीसरा कार्बन एटम है और तीसरे कार्बन एटम पर 2 ब्रांचेस हैं, तो 2 बार हमने लिखना है कि 3 3 डाई मिथाइल हेक्सेन। तो ये आयुपैक के रूल्स हैं। अब लास्ट जो है वो अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है सिलेक्ट द चेन दैट हैज मोर सब्स्टिट्यूएंट। अब आपने चेन ऐसी सिलेक्ट करनी है जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा से ज्यादा आ रहे हो। देखें 1 2 3 4 5 6 7, अगर मैं इस तरफ भी जाऊं तो 7 वाली है, लेकिन यहां पे मुझे ब्रांचें कितनी मिल रही हैं? फिर देखें
1 2 और 3 ब्रांच मिल रही है। लेकिन अगर मैं देखूं 1 2 3 4 5 6 एंड 7 वाली, तो मुझे ब्रांचें कितनी मिल रही है? 1 2 3 और 4 ब्रांचेस मिल रही हैं। अगर मैं ये चेन सिलेक्ट करता हूं तो मुझे 2 ब्रांचेस ये और एक ये सारे वाला मॉलिक्यूल जो है, ये सारा आगे वाला पार्ट मुझे ब्रांच के तौर पर मिलता है। लेकिन अगर मैं ये वाली चेन सिलेक्ट करता हूं तो मुझे मैक्सिमम ब्रांचेस जो है वो मिल रही है। ठीक है, तो अब मैंने अब यहाँ पे देखा ये 2 3 और 5 ये तीनों ग्रुप मिथाइल है, ये प्रोपाइल है। तो जब अल्फाबेट को देखते हैं तो मिथाइल M पहले आता है और P बाद में आता होता है। तो अब हमने लिखना है 2 3 5 3 है, कितने हैं बना? ट्राई, कौन सा ग्रुप अटैच है? मिथाइल, ट्राई मिथाइल। चौथे नंबर पे है प्रोपाइल, तो बन गया 4 प्रोपाइल हेप्टेन। स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड दैट हैज मोर सब्स्टिट्यूएंट, जहां पर ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। अब इस ब्रांच में देखें आप 1 2 दूसरे नंबर पे 2 ब्रांचेस आ गई हैं। 1 2 यहां पर भी जो है वो दूसरे नंबर पे 2 ब्रांचेस आ रही, मतलब अगर हम नंबरिंग इधर से स्टार्ट करें तब तो। लेकिन हम देख रहे हैं कि अगर हम इधर से स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास दूसरे कार्बन एटम पे 2 ब्रांचेस है। लेकिन अगर हम नंबरिंग इधर से स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास दूसरे कार्बन एटम पे जस्ट ओनली 1 ब्रांच है। सो हमारी प्रायोरिटी क्या होगी? हम फिर इस तरफ से जो है वो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे ताकि हमारे पास मोर सब्स्टिट्यूएंट, मोर ब्रांचेस आ जाए। तो अब 2 पे है, 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे तो 2 बार लिखा 2 2। तीसरे पे मिथाइल ग्रुप है 3, चौथा है एक जो है वो 4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन, इसका जो है वो नाम बनेगा। मजीद एग्जाम्पल हैं, देखें आपके सामने 1 2 3 4 5, जहां से मर्जी नंबरिंग शुरू कर ले, दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो ये मैंने नंबरिंग इधर से स्टार्ट की, इसका बना 2 4 डाइमिथाइल पेंटेन। इसी तरह से ये देखें कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 वाली। तो दोनों 3 चेन्स बन रही है, एक ये स्ट्रेट और 2, एक इधर से इधर और एक इधर से इधर। दोनों जो है वो चेन, तीनों चेन में 5-5 कार्बन एटम है। लेकिन जब हमने ऐसी सूरत हाल देखनी है तो हमारी प्रायोरिटी क्या होती है? हमारी प्रायोरिटी होती है कि हम स्ट्रेट वाली सिलेक्ट करें। तो हमने ये वाली सिलेक्ट कर ली और तीसरे नंबर पे इथाइल ग्रुप है तो इसका नाम बन गया 3 इथाइल पेंटेन। अब यहां पर हमारे पास देखें ब्रांचेस पे ब्रांचेस आ रही हैं। ये दूसरे नंबर पे भी 2-2 ब्रांचेस, इधर से करें तो दूसरे नंबर पे भी 2-2 ब्रांचेस। अगर नंबरिंग इधर से होती है तो तब ये दूसरा कार्बन बनता है, तो दूसरे कार्बन पर 2-2 ब्रांचेस। तो इधर से करें तो अपनी मर्जी है, मैंने इधर से कर दी, आप इधर से भी कर सकते हैं। तो क्या बना? इसका नाम रहेगा 2 2 फिर 4 4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन। इसी तरह से अब यहां पे देख लें आप 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 कार्बन वाली है। लेकिन अगर हम इधर को जाए 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये 6 कार्बन वाली चेन बनती। तो हमने तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। चेन चाहे स्ट्रेट हो जाए चाहे ब्रांच हो जाए, लेकिन अगर स्ट्रेट चेन में कार्बन एटम की तादाद भी उतनी है और ब्रांच चेन में भी उतनी है, तो फिर हमारी प्रायोरिटी क्या होती है कि हम फिर स्ट्रेट चेन वाली सिलेक्ट करते होते हैं। अच्छा जी, तो अब यहां पर जो है वो 1 2 3 तीसरे नंबर पे है, तो 3 3 डाइमिथाइल। ठीक है, अब इसके बाद एक ये वाली ये भी CH3 मिथाइल है, तो कितने बन गए? 3 3 3 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। तो ये इसका IUPAC नेम होगा। होपफुली आपको जो है ये सारा लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। अगर समझ आया तो आपने लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लेंगे तो आपको वो इंशाल्लाह वो पॉइंट क्लियर हो जाएगा। नोमेनक्लेचर जो है इतना आसान टॉपिक भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है, सिर्फ एक स्मॉल ट्रिक है जो मैंने आपको यहाँ पे ट्रिक्स बताई हुई हैं, इजी ट्रिक्स है। इन ट्रिक्स को जो है वो आपने फॉलो करके जो है वो फिर ये बातें जहन में रखनी और आप किसी भी एल्केन को जो है वो नाम दे सकते हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे जी, अल्लाह ताला आपके इल्म में जो है वो इजाफा फरमाए। तो बहुत बहुत